Hello everyone, how are you all? I am Abhijit Saha from Amarjyoti International School. In today's video, I will basically tell you the importance of balanced diet for your child. अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने पूरे पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म करे ना, then you have to take care of his food. You have to make sure that he takes balanced diet. ठीक है. नॉर्मली हम लोग के टाइम में, हम लोग जब छोटे थे, at that point of time बेसिकली हम लोग उतना ज़्यादा चूजी नहीं थे. We used to get whatever we were served. Okay. But आज के डेट में बच्चे सेम चीज़ बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहते. ठीक है. बहुत ज़्यादा आपको चेंज कर करके देना होगा. एंड इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर ए पर्टिकुलर पेरेंट, पर्टिकुलरली मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है टू मेक श्योर दैट हर चाइल्ड गेट्स बैलेंस्ड न्यूट्रिशन. ठीक है. तो पहले तो मैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूंगा छोटा सा, हालांकि आप लोग जानते हैं बट फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इन ए नटशेल. द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ठीक है. Now carbohydrate basically is needed in large quantity. Carbohydrate is basically the source of energy. Carbohydrate we get from rice, roti, etc. Now without carbohydrate though we will not be able to do work, because carbohydrate is the chief source of energy. We derive energy from carbohydrate. Then let us talk of protein. Protein basically helps the body to grow. If protein intake is not there, the body will not grow. Okay. Now protein is available in meat, fish, eggs, paneer, milk, right? So protein basically is one of the vital components of food. Why? Because if there is a injury to the body, then some cells are damaged. Those damaged cells also get repaired with the help of protein only. So that is why protein is a very important component of the food, and moreover protein is not stored in the body, so it has to be taken on a daily basis. Excess carbohydrate, you have to understand, gets stored in the body in the form of fat. That means some portion of carbohydrate will stay in the body as fat, but not with protein. Protein doesn't get stored up in the body. That is why protein has to be taken on a daily basis. It is said that if a person doesn't do hazardous work, in that case also adult person needs around 30 to 40 grams of protein on a daily basis, and same with child. A child also needs around 30 to 35 grams of protein daily if he is not doing hazardous work. And if he is into hazardous work, then he will need more protein. That will depend. Now let us talk of fiber. Fiber is a very important component of food which basically helps us to keep the sugar level down, the cholesterol level down, and fiber also makes sure that the bowel is regulated. Okay, so fiber is also very important. Now let us talk of fat. Fat is also important. See, fat is also one of the most important components of food. Excess fat in the body is not good, but a little bit of fat each and everyone should have in his or her body, because when there are difficult times when we cannot eat anything for a prolonged period of time, the body at that point of time gets energy from the fat which is there in the body. Fat is also a very, very important component of food. Now let us talk of the micronutrients, that means the nutrients which we need in small quantities. Talking of micronutrients, the first thing that all of you know is vitamin. Okay, there are different types of vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin K, etc. And at the same time, there are micronutrients called minerals also, like iron. So we need everything. We need carbohydrate, protein, fiber, minerals, vitamins. Then only the body will get a balanced nutrition. If the body is getting a balanced nutrition, then only you will see that your child is performing to his fullest. Okay. Now what can happen if your child is not getting the requisite components which he or she should get from his food? I am giving you some examples. If your child is not taking adequate rice, or if your child is taking say one chapati, as per his age, suppose if he should take 3 chapatis but he is taking 1 chapati, then definitely we will see that his energy level will be always on the lower side. Okay, he will not be very energetic. Now if your child is not taking protein, then you will see that his muscles will not develop. If your child is not taking adequate fiber, you will see that he will have problems with bowel regulation. Similarly, if your child is not taking vitamins in proper dosage, then you will see that
he will have some deficiency diseases like deficiency of vitamin B12 can cause nerve weakness or nervous debility. Deficiency of vitamin A can cause problems related to the eye. Deficiency of vitamin C can cause gums related problems like pyorrhea. So vitamins we should have in our food, otherwise we will suffer from deficiency diseases. So now what will you do when you are coming across a situation wherein your child is not very cooperative, is not willing to take the food that you are serving him? You can give him a balanced diet, but if he is not willing to take, what will you do? In that case, basically you have to make sure that you change the items. Suppose paneer is a rich source of protein. Now you have given paneer to your child for 2 days, okay? Then you need to change a little, because soybean is also a very rich source of protein. So as I was saying, just keep on changing the source of a particular nutrient so that your child doesn't feel, that he is into a monotone. जब भी आपके चाइल्ड को लगेगा ना कि एक ही तरीके का खाना मिल रहा है, वो नहीं खाएगा. That is quite natural. See, I am a grown-up person. I know that yes, this I should take. But even then, even I will not take the same thing if I am served again and again. So rotation has to be there. ठीक है. पनीर आज आपने उनको दे दिया, फिर अगर 10 दिन बाद देंगे तो डेफिनेटली वो लेगा, लेकिन डेली बेसिस पे अगर एक आइटम आप उसको सर्व करेंगे डेफिनेटली वो नहीं लेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू गिव हिम अ बैलेंस डाइट. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बैलेंस डाइट किस तरीके का आप दे सकते हो उनको. ठीक है. फिर भी देखिए, जितने तरीके के विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो तो नहीं मिल पाता. ठीक है, वो प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ. आई कैन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बैलेंस डाइट. जैसे कि आपका बेटा राइस ले रहा है, राइस के साथ मान के चलिए कि एक मिक्स्ड वेज टाइप का ले रहा है. ठीक है. उसके साथ मान के चलिए कि वो फिश ले रहा है. ठीक है. और फिर फ्रूट्स ले रहा है. ठीक है. इस तरीके का अगर आप उसको एक डाइट देंगे ना, सो दिस टाइप ऑफ डाइट विल बी बैलेंस्ड डाइट, जहाँ पे प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल्स होगा, एवरीथिंग विल बी देयर. ठीक है. तो आपको बेसिकली देखिए, मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब अपने बच्चे को, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए फादर, मैं जब देता हूँ अपने बच्चे को खाना, तो बेसिकली मैं इस चीज़ पे ध्यान रखता हूँ कि आज प्रोटीन मिला या नहीं मिला, उसको फाइबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक है. अगर एक पर्टिकुलर मील में नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरे मील में एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ टू कंपेंसेट फॉर दैट. ठीक है. जैसे कि ऐसा भी कभी होता है कि मैंने बेटे को राइस दे दिया, थोड़ा सा दाल दे दिया, सब्जी दे दिया, फ्रूट्स दे दिया, लेकिन मुझे अगर लगता है कि नहीं, प्रोटीन आज थोड़ा सा कम गया है उसके शरीर में, इन दैट केस एट नाइट आई ट्राई टू गिव हिम अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो दैट वे आई ट्राई टू कंपेंसेट, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा रहता है सेट कि कार्बोहाइड्रेट उसे मिला या नहीं, प्रोटीन मिला या नहीं, थोड़ा बहुत फैट मिला या नहीं. सो दैट इज व्हाट. तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना होगा. यू नीड टू बी कॉन्शियस दैट वेदर ही इज गेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड और द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट ही नीड्स टू गेट. एक पर्टिकुलर मील में उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट मील में थोड़ा सा कंपेंसेट कर दूंगा. सो दैट वे you have to plan his diet in such a manner. And one thing you can do, although it is easier said than done, लेकिन डेफिनेटली आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक चार्ट रख सकते हैं. ठीक है. जैसे कि रेसिडेंशियल स्कूल्स में आप देखेंगे, जैसे कि मैं बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स में काम मैंने किया है, तो मैंने देखा कि चार्ट रहता है वहाँ पे ना, कि मंडे को ऐसा रहेगा, ट्यूसडे को ऐसा रहेगा, वेडनेसडे को ऐसा रहेगा. ठीक है. तो बेसिकली जो मेनू सेट किया जाता है ना, इस तरीके से किया जाता है कि थ्रू आउट द वीक एक बैलेंस न्यूट्रिशन बच्चा को मिले. तो आप घर में भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं कि ठीक है, मंडे हम लोग ऐसा खाएंगे, ट्यूसडे ऐसा खाएंगे, वेडनेसडे इस तरीके से खाएंगे. ना अभी उसमें तो फाइन चेंजेस हो सकता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इन द मार्केट. ठीक है. तो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी पेरेंट इज कि आप लोग थोड़ा सा बैलेंस न्यूट्रिशन बच्चे को दीजिए. आप लोग देखेंगे कि आपका बच्चा अगर फुल्ली एनर्जेटिक होगा, डिजीज फ्री रहेगा ना, इन दैट केस अल्टीमेटली ही कैन परफॉर्म टू हिज फुलेस्ट, टू हिज एबिलिटी. नहीं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितना एबिलिटी उसमें है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा. सो कीपिंग इन माइंड कि बच्चा तो थोड़ा सा चूजी होगा फूड को लेकर ना, तो आप इसको लीजिए एज ए चैलेंज ना. यू डोंट फील लेट डाउन, यू रादर टेक इट एज ए चैलेंज कि नहीं, आई विल ओवरकम. तो प्लीज़ टेक इट एज ए चैलेंज कि नहीं, बच्चा अगर खाना ना भी चाहे तो एटलीस्ट नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज करके उसको खिलाऊंगा. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई होप कि आप मेरे बात पे गौर करेंगे और डेफिनेटली आप
कोशिश करेंगे कि बैलेंस न्यूट्रिशन अपने बच्चे को दें। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज़ मुझे बोलना होगा विच आई शुड एडमिट इस, आप जितना भी कोशिश कर ले फिर भी आप देखेंगे कि जितने तरीके के विटामिन्स उसके शरीर में जाना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना फिजिबल है ही नहीं। ठीक है, किसी के लिए टाइम के हिसाब से फिजिबिलिटी बोलिए या अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिजिबिलिटी बोलिए, संभव नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए डेफिनेटली। डायरेक्टली मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप मत करिए, यू कंसल्ट योर डॉक्टर। लेकिन एक मल्टीविटामिन का कभी कभी आप कोर्स करा सकते हैं बच्चे को। इससे क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर विटामिन का, विटामिन ए बोलिए या फिर विटामिन B12 बोलिए या फिर विटामिन B6 बोलिए, किसी भी एक पर्टिकुलर विटामिन का एक्यूट डिफिशियंसी बॉडी में नहीं आएगा। तो एक मल्टीविटामिन का आप उसे बीच बीच में कोर्स कराइए, जैसे कि B1 हो गया। ठीक है, B1 इज़ ए गुड मल्टीविटामिन, फिर रेजुमिन्स हो गया। सो देयर आर मेनी मल्टीविटामिन्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो कोई भी एक मल्टीविटामिन का आप अपने बेटे को कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा कोर्स करा दीजिए। उससे क्या होगा, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ए पर्टिकुलर विटामिन विल नॉट टेक प्लेस इन हिज बॉडी। ठीक है, कभी कभी एटलीस्ट मैं तो फील करता हूँ कि साल में एक बार ही सही अपने बच्चे को एक आयरन का आप कोर्स करा दीजिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन आयरन जो कि बहुत बच्चा ना इसको टॉलरेट नहीं कर पाता, तो इसके लिए मैं बोलूँगा आयरन एक ऐसा मिनरल है ना जो बहुत ज़्यादा आपको नेचुरल सोर्सेज से ही मिल जाएगा ना। जैसे कि आपका बनाना का जो फ्लावर पोर्शन जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। फिर आपका पोमीग्रेनेट हो गया, रिच इन आयरन कंटेंट। फिर आपका और एक आपको मैं चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कि लोहे का कढ़ाई जो होता है ना, यू कैन बेसिकली कुक। आप अगर लोहे के कढ़ाई में खाना बनाएंगे तो बेसिकली आप देखेंगे कि वो भी हेल्प करेगा आपको ना, कि आयरन कंटेंट थोड़ा सा बॉडी में हाई हो। जैसे कि और एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि वेयर यू कैन एक्ट स्मार्ट, जैसे कि आपका मीठा, जैसे कि आप चटनी बना रहे हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर यू कैन यूज जैगरी, क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। ठीक है, जो कि चीनी में आयरन नहीं है। तो अगर आपको एक स्वीट डिश बच्चे को देना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर ट्राई टू यूज जैगरी। सो दैट वे आयरन तो नेचुरल सोर्सेज से मिल सकता है, लेकिन कुछ कुछ विटामिन है जो कि नेचुरल सोर्सेज से मिलना बहुत मुश्किल है। सो बेसिकली आई विल एडवाइज यू टू गिव अ कोर्स ऑफ मल्टीविटामिन टू योर चाइल्ड वंस इन ए ब्लू मून। और ओवरऑल आपको थोड़ा सा चेंज कर करके अपने बेटे को देना है। इन दैट केस आप देखिए कि वो लेगा। ठीक है, और देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अगर एक सोर्स उसको पसंद नहीं भी है तो आप दूसरा कोई सोर्स से आप उसको प्रोटीन दे सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस डाइट ऑफ योर चाइल्ड, बिकॉज आपका बच्चा अगर ठीक से खाएगा तभी वो अपने पोटेंशियल तक परफॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून विथ अनदर वीडियो।